So yes, hey all, hi everybody. Wish you a very good Friday today on the Facebook group. So yes, let's wait for 5 more minutes or 30 seconds before everybody joins in, and so that we get a clear idea of we audible, are we visible, and the most important thing is we are going to wait for the viewers to join because I don't want any one of you to miss today's live talk with Reshu Agrawal, a very, very important and renowned personality. And I want all of you to be here on this group to actually join this live session, hear her, and ask her a lot of questions because they are going to help you build your own business, your own brand. So, yes, we'll wait for another 30 seconds, and we have few viewers over there I can see. So, are we audible and visible? Please let us know. So, yes, so many. Yes, people are saying Sonali Saripalli has said, "Hi, Reshu, welcome, dear." So, welcome, Reshu. Thank you, Sonali. And yes, the viewers are saying, "How can I miss?" Oh, that's the start is so great. Yes, and both are my favorites. So, thank you so much, darlings. Thank you. And so, I think we are good to go. So, hello, everybody. Wish you a very good Friday. We are here on the Skill Connect group live on the Friday live interview series, where we are conducting these interviews every Friday so that we can meet a lot of different entrepreneurs and they can help us guide how to start our own entrepreneurship journey. First of all, second is they are here to influence you. So we are here with our live interviews so that these people can influence you to keep chasing your dreams, to keep chasing your goals, and join us at Skill Connect, where we support end to end, where we give you an end to end support right from starting your business career, or whether you want to choose which type of business, what is your life purpose, till the end, like marketing, sales, funding, everything. So get inspired, get influenced, and keep that fire on. So we are here to provide you that fire every Friday. And we have another firing personality with us today. And I welcome you, Reshu Agrawalji. Thank you so much. Am I audible? Yes. So thank you, Dr. Mitali. She has said, yes, you are clear and audible. Thank you. And Mitali has also said, we are happy to have you here, Reshu. Thank you, So, ma'am. so I think today we have Reshu, and messages are going to just pour in like heavy rains today. And yes, why this is so? Let me tell you all that Reshu is a former principal and now she is running her own brain world. And out of the box introduction for her is that she's running a company where she is conducting science practical examinations and competitions in the school. And she has 5 verticals in her business. So, very influential. The 5 verticals are competitions, activity books, educational summits, educators magazines, and voice general next uncensored parts. So yes, I think these terms, few terms I know, few I do not know, and we would like to know more about you from yourself. So over to you, Reshuji. Thank you so much. Thank you, Doctor. Thank you, Mitali ma'am. Thank you, Sonali ma'am. Everybody who invited me here. And yes, definitely, I'm very happy and honored that I'm here on this entrepreneurs page. And I started my journey in 2016 when I came in Pune. I worked as a principal prior that in near to Bhopal, and in 2016 it's a new city for me. Not even a single person in Pune. You can say मैं नहीं किसी को जानती. मैं ये बोल सकती थी. In 2016, me and my husband and my child, only 3 were there, and हम तीनों ही थे आपस में, and not even a single person in Pune I was aware कि what exactly where the school is, where the mall is, where I have to go, anything, and it's completely a zero sign in front of me. 2016 to 2017, I was in a research mode
because of the thing is like I worked as a principal from the last 20 years. I was into education, so that was very clear in my like mind that yes, I have to be a principal again. Not okay, fine, not will be in a very big school, but yes, I can restart my career from a small school, small scale school, and so I was keep looking for the principalship. Then I realized that because of the language issue, it's a Marathi mediums and all. And yes, if you are the principal of CBSE or ICSE school, you have to be little bit what you can say, like you know Marathi at least. On administration chair, when you are sitting on the administrative chair, you have to learn the native language of that city where you are. And that was a challenge for me. I got a job from 2-3 schools as a principal, but there was a thing, ma'am, we are okay, everything is very nice with you, but we want that you have to learn language within 3 months or within 2 months. Now Oh. for me, who is from North, how can I do that? I said, ma'am, it's not possible for me to learn a complete new language. For me, even I was not able to use the words. There's a problem with me, like because I'm from North Delhi and all Lucknow, Bareilly area. So we used to say aap. For Okay. you, Yes. we are saying aap, and in Marathi the word is tu. So Yes. that is the main problem. I was not able to learn that language because of Oh, yes. that. आप एंड टू वाला जो डिफरेंस एक आपको आता है, आई एम फ्रॉम Hmm. दैट कल्चर के जहां पर वी आर यूजिंग टू से आर एल्डर्स आर यंगर्स एंड ऑल आप. इवन आई एम यूजिंग माय चाइल्ड को भी, मैं मेरे बेटे को भी 7 साल के बच्चे को मैं आप बोलती थी, और मुझे Yes. यहाँ पर अभी सबको तू करके बोलना पड़ेगा इन मराठी. सो दैट वाज द Yes. मेन problem or hurdle. I can say that was the thing I felt. But yes, one of my friend or in Pune, I met her in Pune, and she told me that you cannot survive if you don't know the language. She told me this, that it's not possible, Reshu. You have to learn Marathi if you want to survive in Pune. And that day I took it as a challenge. Okay, Wow. I will show you. I will not learn Marathi language and I Oh, will wow. survive. And trust me, still I'm blank. My husband knows Marathi. My child knows Marathi. They used to discuss over together in Marathi language. But I decided not to learn Marathi. And still, I want to prove myself that language is just a medium to show or to share what you want to do. It's not the thing that your faith is on or your career is on the language part. So this is what my thing. No, I will not learn Marathi language. I will speak in Hindi with everyone. I will speak in English with everyone, and I will continue my journey only with these 2 languages, and I will prove myself. And I think I don't know whether still I'm on the learning phase, and I'm doing my thing. I wish within a 2 years, I am taking my challenges myself. So within a 2 years, I believe that, yes, I will do what I wanted to do. Still, I'm on a path of working or learning, you can say. So this is what the starting thing in 2016. And in 2017, after a year, I started my company, Brainword. So that's the journey. So 1 year, I was in a research mode. That what type of thing to start, why I have to start, where I have to start. So when on this platform, I want to share this thing as I took it not as a challenge, but as a learning part as well for a year. Whenever you want to start any business, any kind of business, this is what my personal experience. So this is very close to my heart, that if you want to start a business, what you have to do, you have to be very much clear where you are going to start, what you are going to start. Is this the need of the market? That is a very important question. Is this the need of, don't go run behind the market, what exactly all the people other are doing. Okay, sab kar rahe hain to mujhe bhi karna hai. I suggest please don't do that. अगर सारे लोग मास्क बना रहे हैं ना, तो तुम मास्क मत बनाओ, तो तुम कोई और बिजनेस करो. मत मास्क पे मत जाओ. अगर सारे लोग वो कुछ कपड़े का या क्लॉथिंग का, या वो आजकल एक बहुत ट्रेंड में देख रहे हो, एवरीबडी इज ऑन स्टेटस. इवन माय फ्रेंड्स, आई लाइक वो ड्रेसेस को शेयर करते हैं, सेल वाला रीसेलिंग जो चल रहा है. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, डोंट स्टार्ट रीसेल वाला बिजनेस. एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग रीसेलिंग टुडे. सो think out of the box, start something which need of the market but other people are not doing. शायद इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे ज्यादा करना पड़ेगा, बट आई कैन बेट इफ यू वर्क ऑन दीज 3-4 पॉइंट्स,
you will definitely a successful person, whatever you are going to start. Sure. I I think think yes, definitely. I think you have given a lot of insights while saying about your journey also, and this is what even Bhavna has to say. Thank you, Bhavna, so much for being there. She's written that it's my pleasure to see two powerhouses of ideas on the same platform. Thank you so much, Bhavna. thank And you I guys. think let me repeat the insights that Reshu has given just in a short brief. First thing she said that don't take life as challenges. Okay, just take them and see what you can do differently. Don't go into the herd mentality. Think from a different point of view, because if you want to be extraordinary, then you cannot think like ordinary people. So move from True, true. 95% to the 5% extraordinary mentality mindsets, and think from that level how you can go different. Now, to do all of these, she has said what do you want to start, why do you want to start, from where do you want to start. At the same time, you she has also said that you need to take that pause, that very break, so that you self reflect upon yourself, that what is the need of you and need of an hour. So I think pauses are very important in life, Ratio, because people do not tend to take pauses, right? And pauses, like when you take a step behind, it's because you're going to take a leap ahead. So when you take a True. pause, people feel that we are wasting time, but I think it's not a wastage of True. time. Rather, we I are think preparing ourselves to take that leap ahead. So beyond time. So we will be beyond time. And I took one yes, year for that. It's like a gap of 1 year. yes. 2016, in the month of May, I came in Pune. In the month of July and August, I got the opportunity as a principal, and I Mhm. start talking to the principals, meeting to the school CEO and the founders, and then I realized that language is a problem for me as an administrative chair. I have to learn this language, and I'm not ready to Right. learn. And that was the time. It's not about the I'm ready or not. It was like, how can I learn another language within a month? It's not possible for me. It's something I had to work on it. I Unrealistic. need You have some time. to Even be I have a child. realistic. Yes, I have a child as well with me, so I have to take care of my child. At the same time, I have to learn a language. I have to work as a principal. It's so much to do. So that was the reason I stepped back, one step back. Okay, now I have to search for other thing. So I started searching the next step. That is what franchisee. Okay, what I will do as a ratio, I will take some franchisee and I start my thing, because उसमें तो फिर मुझे लगा ना लैंग्वेज नहीं ऐसे चाहिए होगा. So I was in that mode. So that point of time when I started meeting the CEO of the companies, like I will not take name here, but so many activities companies, I realized ये सब तो मुझे आता है as a principal. तो मैं इनके साथ क्यों का मतलब honestly on this Right, platform I'm very sharing. true. You believed This is in what I yourself and did not try to fit in. I mean, that's how you maintained your own integrity and you became you. Otherwise, you would have been lost in that process that if is you what I tried wanted. to. This is all I know. And this is Yes. ये तो मैं इनसे बेटर, मतलब मुझे ऐसा लगता था ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. नो, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. Then I thought कि ये सब भी बहुत हो रहा है. When you're talking about abacus, when you're talking about Vedic math, when you're talking about activity classes, after school activities, every second house is doing the same thing. Every society is having the same thing. हर flat में ये चीज चल रही है. Now what to do? The question is, now one day my son, I was keep looking on these, what I have to do, what I have to do. One day my child asked me, Mama, I want to do some science experiments. Mhm. Is there, it's a big city, Pune, तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ science labs होते हैं क्या? I started, then I got to know not even a single science lab at that point of time in 2017 or Oh, wow. 16, nahi. Then I thought, अगर मेरा बच्चा ये मांग रहा है और मुझे नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे करते होंगे और पेरेंट्स को नहीं मिलता होगा. So why don't I start my new thing or a company or whatever I can plan in this field? Then Brain World come into a picture. And then I started Brain World as a company where we started competitions in schools. So in 2017, I started not only in the schools, but I started वो क्या बोलते हैं उसको आपका counters लगाना. I started counters. मैंने Oh, खुद wow. के counters किए because This is of so learning. innovative. Yeah. मुझे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर मैंने बहुत, ये भी एक मैं आप लोगों को सभी को व्यूअर्स को सजेशन दूंगी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो एक बार उसका डेमो खुद से करके देखो कि उसको
मार्केट एक्सेप्ट भी कर रहा है? कई बार कैसा होता है, बहुत सारे बिजनेस फेल होने का रीजन क्या होता है, हम बहुत सारा मार्केट का मतलब मार्केट का ओवरव्यू देख के पैसा लगा देते हैं और Yes. रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि हमने एक बार क्रॉस चेक, जैसे बच्चे को नहीं एग्जाम के लिए जब आप भेजते हो तो एक बार घर पे रीटेस्ट करते हो ना उसका, एक बार कि प्री टेस्ट कि चलो तुम एक बार कर लो, बोर्ड से पहले भी एक प्री बोर्ड होता है ना, तो वो Yes. प्रिंसिपल वाली मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई थॉट कि जैसे प्री बोर्ड होता है वैसे ही मैं क्यों ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक डेमो करके देखूं कि मेरे जो मैं देना चाहती हूँ बच्चों को उसकी डिमांड कितनी है। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अलग अलग जो इवेंट लोग करते थे बड़े लोग, मैंने उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया, उनके इवेंट्स में मेरे बच्चों का स्टॉल लगाया, एंड देन आई रियलाइज कि इसकी तो बहुत जरूरत है मार्केट में। द फर्स्ट शो वाज इन शेराटन विद किड वेंचर, और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट मैं बताऊंगी जिससे लोगों को मतलब एक मोटिवेशन आना चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, और मेरा उस दिन का सब मिलाकर 22,000 जस्ट इन अ वन डे। Wow. 10,000 investment. So that day I realized कि yes, this is the need of the time और लोगों को इस तरीके का कुछ चाहिए। Then Yes. I started working on that, and then मैंने फिर उसका प्रॉपर कंपनी फॉर्मेशन किया, अकाउंट्स खोले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपनी रजिस्टर करवाई, गवर्नमेंट का जितना भी होता है, पुणे के लिए एक शॉप एक्ट लेना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। Yes. Yes. Right. I did each and everything, paperwork complete करा. Then I announced my company, and then I started with not only the events, but then I started going in the schools कि this is what we are doing, और principals के साथ में मिलना start करा. So that was the first step I took. और फिर उसके बाद फिर पीछे Yes. What I find here in you is, Reshu, that you are a very organized person and who is based on a realistic foundation. Because such people are then open to learn and grow and receive information, because that's where you were open when you're said that mom यहाँ पे science lab है क्या, and then things come to you, but you should be very conscious and available to take those things to you. So when you are conscious, you are based on a realistic foundation, then it is that things are coming to you always, and you have, like, we have all the resources within us. Everybody has. It's just that we need to be stable and we need to be connected with our own self. That's where you didn't fit in. You did not try and learn Marathi because I think you were made for this purpose, truly. And when you are all about brain world, I sometimes feel that there are so many things in brain world. But if I ask you that what is the one thing, the one USP that you would like to mention about brain world, then what would it be? I think अगर आप यूएसपी की बात करोगे, सो आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए नहीं चाहिए, बट आई बिलीव दैट आई एम द पर्सन हु इज एक्चुअली द यूएसपी, बिकॉज द वे आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, बट आई नो नोबडी एल्स कैन डू, बिकॉज इट्स माय बेबी, इट्स माय ब्रेन चाइल्ड. सो आई हायर 2 MBA पीपल, 2 लड़के मैंने हायर भी करे थे, पर जब वो प्रिंसिपल्स के साथ बात करते थे तो डील, जबकि दे वर वेरी क्वालिफाइड, बट आई फेल्ट कि वो डील क्रैक नहीं हो रहा है, या एक होता है ना कि मुझे वो चार्म नहीं आता था. सो आई स्टार्टेड, ओके फाइन, आप सिर्फ ऐसा करो, ईमेल का चैटिंग आप करो, एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड वन बाय वन. मैंने उन लोगों के साथ बात करना शुरू किया, मैंने उन लोगों के साथ में प्रिंसिपल्स के साथ मिलना शुरू किया, प्रिंसिपल्स के साथ बात करना मैंने शुरू किया, उनके साथ में मीटिंग्स किए, एंड देन एक कन्विंसिंग चीज होती है कि आप कन्विंस करो कैसे प्रिंसिपल को कि आप जो दे रहे हो वो आज के समय में स्कूल में, सीबीएसई आईसीएसई में बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड एंड आई डिड. तो वो धीरे धीरे करते करते कैसे हुआ ना कि प्रिंसिपल्स के साथ में कनेक्शंस भी अच्छे से होने लगे, उनके साथ मीटिंग्स होने लगे, और फिर वो एक बोलते हैं ना बनता चला गया. वो ऐसा बोल सकते हैं, हम अकेले चले थे और कारवां बनता चला गया. आई थिंक मुझे बाकी का नहीं पता, बट मुझ पे ये बात बहुत फिट होती है, बिकॉज आई टोल्ड यू एट स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, आई वॉज द ओनली पर्सन इन पुणे जो खुद को जानता था. मैं किसी को पुणे में नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, बिल्कुल ऐसे ना जब जीरो ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया है, मैंने वैसे स्टार्ट किया था ब्रेन वर्ल्ड को. तो 2017 में मैंने लॉन्च किया. 2018 तक आते आते आई हैड 7-8 स्कूल्स इन माय हैंड. 2018 लास्ट तक आते आते आई थिंक 12 स्कूल्स के साथ मेरा टाई अप हो गया था, जहाँ पे हम बात करके कॉम्पिटिशन्स वगैरह करने लगे थे. 2020 में द डे व्हेन आई थॉट कि अभी 140 स्कूल्स के साथ कॉम्पिटिशन्स करने थे, लोकमत के साथ बात चल रहा था कि हम एक बड़ा इवेंट लेकर आएंगे, उनके पास स्कूल्स हैं, मेरे पास स्कूल्स हैं,
मिलकर कुछ करेंगे, तब तक कोविड आ गया। बट हाँ, अभी yes. बट यहाँ पर भी एक सजेशन मेरा है सभी व्यूअर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि वो एक पुराने जमाने में बड़े लोग हमारे बोलते थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो शायद दिस इज इन माई ब्लड एज वेल, आई कैन से। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई फैमिली कि आप वो परेशानियों में भी सोल्यूशन ढूंढो। एक रहता है ना कि आप परेशानी है आपके पास, आपका कुछ एक ऐसा टाइम आ रहा है, हार्ड टाइम आ रहा है, तो उसमें हार्ड टाइम पे फोकस ना करके उसके नए ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो। एंड माय पापा ऑलवेज सेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। दैट लाइन इज लाइक कीप स्टकिंग इन माय माइंड, इट्स हैमरिंग इन माय ब्रेन एवरी टाइम। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोविड आके गया, आई ऑलवेज सेज वन लाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अगर कोविड नहीं आता तो मैं एजुकेशनल समिट और कॉन्फ्रेंसेस शायद स्टार्ट नहीं करती, और मैं उसी में चल रही होती जो था। बट जब ये आया ना तो स्कूल्स बंद हो गए। अभी मेरा हाँ, ऑब्वियसली डेफिनेटली बिजनेस आपका एक स्टेप नीचे आया, और साथ में मेरा जो सेकंड वर्टिकल था एक्टिविटी बुक्स का, सो आई एम ऑल्सो अ डिजाइनर ऑफ एक्टिविटी बुक्स। मैंने खुद नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2, 3 तक के लिए साइंस के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बुक्स बनाए हैं, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के लिए 5 किताबें ना पढ़ाकर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आई हैव अ बुक, कि उस एक बुक से आपका बच्चा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे को आपको 5 किताबें देने की जरूरत नहीं है। गिव माई 1 बुक और वो सब याद करके घर आएगा। आई कैन चैलेंज ऑन दैट। तो वो interesting. मैं, मैं उन सब चीजों में काम कर रही थी और स्कूल शट डाउन। मतलब हाँ, कितना अच्छा दैट कर वाज रहे अ हो, मतलब चैलेंज। that was the need. Like you were in a flow state. I can see that now. You are in a flow state. That's why people like they start doing it and then it's needed there. It happens. मतलब सब कुछ ठीक जा रहा था, मुझे पता था स्कूल को ये चाहिए, मैं उनको दे रही हूँ जो उन्हें चाहिए, कॉम्पिटिशन्स भी प्रैक्टिकल चाहिए पेरेंट्स को और स्कूल को, एक्टिविटी बुक्स भी जो मैं बना रही थी वो भी स्कूल को चाहिए थी। कोविड केम, इट्स लाइक अ बॉम्ब, आई लाइक आपके बीच में आके गिर गया, एंड व्हाट यू हैव टू डू, इन नथिंग। सो 1 or 2 months आई वाज इन अ मोड कि अब क्या करना है। अगेन यू कैन से दैट यस, आई स्टेप बैक फॉर सम टाइम, लाइक आई हैव टू सिट, मुझे सोचना ही था कि कुछ तो करना है यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। देन वो जो एक सिचुएशन आ रहा था, वो जो मैसेजेस आ रहे थे कि सैलरी आधी हो गई है प्रिंसिपल्स की, और टीचर्स की सैलरी Yes. आधी हो गई है, उनको पेरेंट्स फीस नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता जा रहा था। पेरेंट्स का प्रॉब्लम दिख रहा है, स्कूल का प्रॉब्लम दिख रहा है, एजुकेटर्स का प्रॉब्लम दिख रहा है। देन आई रियलाइज कि कुछ ऐसा किया जाए कि एजुकेटर्स को प्रिंसिपल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना। प्रिंसिपल्स Right. अपनी चेयर लेके बैठे हैं, पर उनके पास वो इतना सीबीएसई, आईसीएसई के काम में बिजी हैं कि वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक तो इसी में बिजी रहते हैं, फिर उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है। ऐसे में वो अपने स्कूल के लिए अच्छे एजुकेटर्स कहाँ से ढूंढेंगे? टाइम का प्रॉब्लम Right. है। और एजुकेटर्स के साथ वही प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है। एज एन एजुकेटर आई हैव सो मेनी थिंग्स, बट मेरा प्रिंसिपल तक पहुंचने का जरिया ही नहीं है। प्रिंसिपल्स आर नॉट इजी टू मीट ना, ऐसे थोड़ी ना आप कोई भी जाओगे और यू जस्ट ओपन द नॉकिंग द गेट एंड Yes. प्रिंसिपल इज ओपनिंग द गेट, इट्स नॉट पॉसिबल। Sure. Yes. सेम Yes. टाइम प्रिंसिपल्स को एक प्रॉब्लम ये होता है कि हर कोई आ रहा है अपना कार्ड लेकर और उनके ऑफिस तक पहुंचा रहा है, दे आर नॉट रेडी टू मीट एवरीवन। और फिर इतने सारे बड़े वर्ल्ड में से फिल्टर कर कर अच्छे एजुकेटर्स को बाहर निकालना, अगेन इट्स अ वेरी टफ जॉब। देन एजुकेशनल समिट केम इन माय माइंड कि अगर हम एक इस तरीके से कुछ समिट्स करें जहां पे हम स्टेज पे पैनलिस्ट उन लोगों को बनाएं जिन्हें प्रिंसिपल्स तक पहुंचना है, और ऑडियंस हमारी प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। और सेम टाइम पे Wow. क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ह्यूमिलेशन भी रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फैला है, तो प्रिंसिपल्स को Yes. भी मोटिवेशन का जरूरत है कि वो आगे जाके काम करें और ज्यादा काम करें। इस कोविड की सिचुएशन के बाद उन्हें वापस बैक टू वर्क होना है, तो कहीं ना कहीं उनका फेलिसिटेशन भी बहुत जरूरी है। क्यों? डॉक्टर्स का फेलिसिटेशन हो रहा है, वकीलों का फेलिसिटेशन हो रहा है, फैशन इंडस्ट्री में फेलिसिटेशन ही फेलिसिटेशन है, एनजीओ वालों का Yes. फेलिसिटेशन हो रहा है, सबका Yes. फेलिसिटेशन हो रहा है। Nobody was thinking about educator and nobody is thinking about the school teacher or a principal. So true. And summit or conferences came in my mind, and 2021 I'm happy to say that yes, I did a wonderful thing. Or 52, I invited actually almost 100 principals, but due to the COVID restrictions, final 52 principals were in my summit, 20 plus educators were in my summit, 15 or 20 renowned person of Pune in my summit, and yes, 10 to 12 leaders of BJP also in my summit, because I am now also the BJP Education Cell General Secretary. उस वजह से भी Yes. एक वो पार्ट रहा था। So Yes. definitely something, it's वो मुझे लगता है शायद कोविड नहीं होता तो समिट नहीं होता।
So I हाँ personally give my credit to COVID. Thank you. Because of you, I started this. And now the fourth part, that is magazine. हाँ. द लास्ट वर्टिकल मैगजीन का भी ऐसा ही हुआ कि जब ये सबमिट का बना रहे हैं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम्म दिमाग में आया कि सिर्फ इससे बात नहीं बनी, वी नीड हम्म. टू डू समथिंग मोर. सो दैट यस. वाज द टाइम मैंने देखा बहुत सारे लोग मैगजीन्स बनाते हैं. वी नो फैशन मैगजीन्स कितने सारे हैं, बहुत सारे आते हैं. बट मुझे क्या लगा कि मैगजीन बनाने का फायदा क्या है. आई बिलीव इन कि आप कुछ पढ़ रहे हो, 10 मिनट भी अगर आज आप मेरे साथ बैठे हो तो आप कुछ लेके जाओ, कुछ लर्न करके जाओ यहाँ से. वो मैं आपसे कुछ लर्न करके आऊँ तो मुझे लगता है कि मेरे वो 10 मिनट्स मैंने यूटिलाइज करे. तो वो मुझे लगा कि अगर मुझे मैगजीन्स पढ़नी है तो मैं ऐसी मैगजीन पढ़ूंगी ना जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिले, जहाँ से मुझे कुछ राइट मिले कि हाँ मैं ये लेके जा रही हूँ. तो मुझे लगा राइट. क्यों ना प्रिंसिपल्स की हेल्प करी जाए एक ऐसा मैगजीन प्लान करके जिसमें एजुकेटर्स जिनके पास ऐसे क्वालिटीज हैं जो वो चाहते हैं कि मेरे स्कूलों तक पहुंचाया जाए बट दे डोंट नो हाउ टू गो देयर. और फॉर एन एग्जाम्पल पुणे का अगर एक एजुकेटर है और वो दिल्ली के किसी प्रिंसिपल से बात करना चाहता है तो वो तो 90% पॉसिबल ही नहीं वहां तक का रीच उसको मिल पाना. मतलब ऐसे होता है ना, यस. या तो आप रीच कर लो या आप क्लासेस कर लो, आप एक ही चीज कर पाओगे. सो यहाँ मुझे लगा ब्रेन वर्ल्ड कम इन द पिक्चर कि नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प एजुकेटर्स एंड वी आर गोइंग टू हेल्प प्रिंसिपल्स एज वेल. So now magazine came in picture. So now I started my brain world as a competition part, then in activity books, then in summit, and the fourth one is that magazine part and the voice gen next. ये voice gen next का मैं पूरा credit देती हूँ मंजू कायरा को. She is an international author and coach and definitely a very good friend of mine. One day we were discussing something and she suggested me कि कुछ ऐसा करें जिसमें बच्चों की आवाज भी सामने आए. And I thought it's a very good idea because we were discussing about the summit and the panel discussions. आपने देखा आज भी मैं आप पैनल डिस्कशन मतलब ये सेशन में बैठे हुए हैं. हम बच्चों से कभी नहीं पूछते, टीनेज बच्चों की मैं बात करूंगी कि आप कैसे देखते हो आगे, मतलब आप जहाँ खड़े हो वहां से आप मुझे कैसे देखते हो, आप दुनिया को कैसे देखते हो, आपकी नजरों से दुनिया कैसी दिखती है. एज अ रेशो अग्रवाल एज अ एज ऑफ 38-39 मुझे पता है मेरे को कैसे देखना है. बट 16 साल का बच्चा जो एक्चुअली मेरे कंट्री का फ्यूचर है वो कैसे देखता है कंट्री को, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू. दिस इज व्हाट माय थिंग इज, मुझे जानना है. तब वॉइस जेन नेक्स्ट हम लोगों ने प्लान करा. उसमें हमने क्या किया था और सेम 15 मार्च 2020 हमारा फर्स्ट शो हुआ था और 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया था. तो हमने उसको भी फिर होल्ड पे डाला. बट यस, दिस इज व्हाट माय प्रोजेक्ट इज. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे शो पे भेजिए. एंड दिस इज वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट इन अ ऑनलाइन शो क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज मुझे ऑफलाइन ही लेके जानी है. बच्चा हमारे सामने बैठेगा, हम उसके साथ डायरेक्टली. हमारा जो फर्स्ट शो था उसमें हमने 2 फ्रेंड्स के बच्चे लिए थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों टीनेजर थे. और हमने टॉपिक लिया था वुमेन्स डे कि एज अ टीनेजर लड़की 16 साल की, एज अ टीनेजर लड़का 15-16 साल का, आप वुमेन्स डे को कैसे देखते हो. आपको क्या लगता है कि वुमेन्स डे जरूरत है, आपको क्या लगता है कि ये जबरदस्ती का दिखावा है, आपको लगता है कि क्या वुमेन्स डे मनाना चाहिए, अच्छा मनाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, क्यों करा जाता है. और आने वाले टाइम में व्हेन एज अ लेडी यू विल बी इनटू योर 20s और एज अ मैन यू विल बी इनटू योर 21, आप कैसे लोगे, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे जो आपकी मम्मियां 38-39 में आजकल वुमेन्स डे और वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे या आपको ये लगता है यार व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, व्हाई दे आर डूइंग पीपल ऑल दिस. द डे आप वो सेशन देखिए, यू फील कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं. और जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना इस टीनेज ग्रुप के साथ में, आप एक इनको टॉपिक दीजिए एंड देन स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम. यू विल गेट नंबर ऑफ आइडियाज हाउ टू focus on your own life, how to live your life, how to understand life. So many things are there. So that is what the Voice Gen Next Uncensored. That was the name of this one. Voice Gen Next Uncensored. So the word uncensored. Yes. The uncensored भी word used कि हम वो चीज खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं जो कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चों के साथ में. दूसरा एक एग्जाम्पल आप इसका ये भी रीजन मान सकते हैं कि सुसाइड केसेस टीनेज में ज्यादा होते हैं. हाँ, हम काउंसलिंग पे फोकस करते हैं ना, ठीक है, हम उनके साइकोलॉजी पे भी बात करते हैं, पर हम आपस में बात करते हैं.
हम लोग क्या करते हैं, हम 4 डॉक्टर बुला लेते हैं, हम आपस में पैनल डिस्कशन करते हैं, और हम लोग एक बड़ा सा पैनल डिस्कशन करके बच्चों के बारे में डिस्कस करते हैं। पर क्या हम में से कोई भी बच्चे से जाके बात करता है? क्या हम में से कोई भी 10 बच्चों को बुलाकर उनके साथ डिस्कस करते हैं कि उनके ऊपर उनकी सोसाइटी, जो उनका ग्रुप है, वो किस तरीके से पीयर प्रेशर है? हम आपस में डिस्कस करते हैं। मतलब कल को अगर एक पैनल डिस्कशन होगा तो मैं, आप और 4 डॉक्टर बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, हमने बात कर लिया, और हम दूर से देख रहे हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ, एक ट्रेन जा रही है और हम ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं और हम ट्रेन को जाता हुआ देख रहे हैं। ट्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है ना, हम सिर्फ उसका बाहर का पिक्चर को देख के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा इसका कलर ऐसा है, अरे इन्होंने ये करा, इन्होंने। ट्रेन के अंदर जाके पता चलेगा ना ट्रेन अंदर से कैसी है। तो बच्चे का अगर आपको ये साइकोलॉजी समझना है कि आगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे कैसे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों से बात करिए, बच्चों के लिए बात मत करिए, बच्चों से बात करिए। I must say, Reshu, I'm so happy to witness this. In fact, कि there are such people in the world outside who are truly conscious, and they are into conscious teachings, conscious, as we call conscious parenting. I can say that you are a conscious educationist. And this is going to make revolution. You know, this is the need of hour, and definitely, as you said, कि बच्चों में वो क्रिएटिविटी होती है, हर चीज को वो अलग नजरिए से देखते हैं, एक कॉन्शियस और लिमिटलेस नजरिया होता है उनको. दे डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, राइट? तो इसके लिए न्यू आइडियाज, न्यू जनरेशंस, क्रिएशंस बहुत होते हैं, और हमें उनसे लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने मिल सकता है. ऐसा एक किस्सा हुआ था विच आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर इन 3 सेंटेंसेस, बिकॉज हमारा क्वेश्चन था चैलेंजेस आपने ओवरकम कैसे किए. और ऐसे एक किस्सा था जहाँ मनन आश्रम में, बिकॉज आई हैव गिवन मेनी सेवाज इन आश्रम्स ऑल्सो, being into spirituality since my 8th, so we'll talk of it. I'm into spirituality. So फिर मनन आश्रम में सेवा हम बच्चों के लिए, टीनेज बच्चों के लिए दे रहे थे, और वहां पे एक गेम रखा था हमने, सांप सीढ़ी का. उसमें से टीचिंग थी कि आपके लाइफ में अगर चैलेंजेस भी आए तो आप सांप को किस तरह से सीढ़ी बना सकते हो. तो आई कैन सी दैट क्लियरली न्यू. जैसे आपने बोला ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे लिए वो सेंटेंस फिक्स हो गया कि सांप को भी सीढ़ी बनाओ, जो भी चैलेंज आ रही है उसमें से नया कैसे बना सकते हो, उसे पकड़ के ऊपर चढ़ो. दिस इज व्हाट आई डिड इन कोविड. आप देखिए ना, मेरा जो कोविड का ये जो प्रॉब्लम आया, इसमें मैंने क्या किया भाई, आप बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अपने बिजनेस बंद कर दिए. मैंने उसी बिजनेस नया वर्टिकल निकाला ना, बंद करने के बजाय. तो वर्टिकल, अभी मैंने बोला ना, I started as one thing and now it's 5 verticals. Or yesterday I was talking to Manju again for the new 6 vertical. So we are coming up with vertical very soon, and that is also again focused on principals, children and educators all together. कि ठीक है, मैगजीन भी हो गया, समिट भी हो गया, कॉम्पिटिशंस भी हो गए, टीनेज से भी बात हो गया, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है. ये पूरा ऐसे ना पैक अभी पूरा तैयार नहीं हो पाया है. समथिंग इज मिसिंग. सो अभी भी ऑप्शन है मेरे पास कि अगर हम ये चीज लेकर आएंगे मार्केट में तो शायद इससे और ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड when I'm talking about education, that is all about awareness. Yes. अगर हमारे पुराने जमाने के पेरेंट्स की बात किया जाए तो कहाँ बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे. पुराने जमाने के मदर्स कहाँ बहुत एजुकेटेड होते थे, बट उनके पास बैठ के जो आपको लाइफ के बारे में सीखने को मिलता था, वो आज आप एमबीए वाले से भी नहीं सीख पाओ. सो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ को कैसे समझते हो, आप चीजों को कैसे समझते हो. एजुकेशन इज, there is a difference between literacy and education. जब मैं देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं कि अरे वो तो मास्क नहीं लगा के जा रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो वैसा नहीं कर रहा है, वो तो पढ़ा लिखा है. मैं कई बार लोगों को ये लिटरली मेंशन करती हूँ वहां पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन. लिटरेसी का मतलब होता है आप पढ़े लिखे हो. एजुकेशन का मतलब होता है आपको सामाजिक, आपको जिंदगी के बारे में पता है, आपको जिंदगी जीने के बारे में पता है, आपके पास ब्रेन है, आपको कॉमन सेंस है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो मास्क नहीं लगा रहे हो या कहाँ पे स्ट्रिक्ट कर रहे हो या जो छोटी छोटी चीजों पे बहुत सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन और दैट इज नॉट रिलेटेड टू लिटरेसी. दैट इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस. आई एम हैविंग सो मच आहा मोमेंट्स विद यू. आहा इज अपने होने का एहसास, बिकॉज व्हेन यू से दिस एजुकेशन and literacy, because I am a life coach who talks all about life and self mastery. You are an educationist, and I'm so happy to witness that I have finally met at least a handful of educationists, one of you, and there is the one most precious you.
who knows the difference कि schools only teach how to make a living, but how to live life, how to live life truly is what is the need of an hour, This need is of something this else. era. And I'm This is so happy this is to the witness yes, and that that. is the problem. Trust Yes. me, that is only the problem. Parents, you can say parents, you can say, see, when I'm talking about the word parents, who are they? Who are parents? All human beings. And all human beings who are, they all are parents. Everybody Yes. is parents now. Yes. 99% तो parents ही हैं सब लोग, और जो नहीं है वो आगे बनने वाले हैं. So that is the main problem. Yes. We are not ready to understand, not as a parent, not as a human being, that schools only help you to be, you can read and write or little bit civilized. But when you want to live a proper life, you have to learn so many other skills. And that is what very, very important. Right, so true. I mean, thank you for this wonderful insights. And even after hearing this interview, I'm sure that all our viewers are going to have, a sort of like self reflection. Aha, acha, am I literate or am I educated? That is They will be coming up actually with so many questions. Am I taking up challenges as problems, or am I looking after the solutions? So there are so many beautiful insights which are coming up. And we have a Facebook user, I think she's Bhavna, I don't know, but very nice, Reshu ji and Prashiti ji. Thank you so much for lovely message, and please keep on commenting, because I am seeing that comments are like, थोड़े कम हो रहे, मे बी वो आपको ज्यादा सुन रहे, इसलिए कमेंट्स कम हो रहे. But when we are talking all about the now, the need, I think this question would come up definitely, that what next? I mean, what are you looking, how are you looking forward to expand your business or expand this education field, this industry? So what are your future aspects? How do you look see, at it? as there are 5 6 verticals, so I'm very clear and focused on my verticals, that each and every vertical must be not only in India but international level. So when I'm talking about the summits, yes, the previous one there was 52 principals in summit. This time I'm taking it at 150. So definitely it's growing. So next time, after the COVID situation, I'm just waiting for the COVID situation to be a little bit improved, so that I can invite more principals, more educators at a one platform. So this is what the Yes. expandation. When I'm talking about the magazine, definitely when I'm talking about magazine, I'm going to take care more things, that in my next magazine, I will be very sure that I am inviting more educators from not only the Pune but from other cities as well. Right now, I have one in my magazine. One is from Himachal Pradesh, one is from Delhi, one is from Goa. So still, I have educators in one magazine from different cities of India. But next time, I'm looking more for this. When I'm talking about the books, and I'm talking about the practical competition. So for this, I'm just waiting to starting these schools, restarting these schools again. So the day school will start, I will assure each and everyone that yes, we are coming up with the one huge competition with more than 140 to 50 schools in Pune, and that will be a grand. I know that actually that was, we planned already everything for 2020, but due to COVID situation, I'm just waiting just to resolve all these things. So yes, this is what my business plan is, that within 2 years, I'm looking that my thing will be not only in India, but yes, international level as well. I'm looking for it's. I want, as Manju always says one thing: think global. And this is again in my mind. The first line, "Jo hota hai अच्छे के लिए होता है," and the second thing, think global. So two Oh things I'm wow. believing global. Yes. That's it. We both are actually thinking same together कि नहीं जाना है तो साथ में. और मेरा एक और भी है, मैं मतलब ये चीज सबको बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं और बात में, प्लीज एक चीज हमेशा हमेशा याद रखिए, व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, वर्क ऑन कोलैबोरेशंस, नॉट इन कॉम्पिटिशंस. दिस इज समथिंग व्हाट हैपेंड ना, जब आप बहुत ज्यादा कंपटीशन में चले जाते हो ना, तो आपका जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव जाना चाहिए था, आपके बिजनेस को ग्रो करने में जाना चाहिए था, वो किसी को नीचा दिखाने में चला जाता है. सो बेटर, मुझे लगता है कंपटीशन की बजाय कोलैबोरेशन करो, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. एंड वो अभी कोई शायद बोल सकता है कि अच्छा मैं मोदी जी को मानती हूँ या मैं बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ये लाइन बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, दिस इज फ्रॉम माई हार्ट. ये सच है, सबका साथ सबका विकास. वाह, दिस इज क्या बात. the truth. This is the truth. This is the truth. Yes, of See, course.
This is energy समझ रहे हो? mapping. Even in मेरा spirituality, we call it as energy mappings. When you are into a feeling of competition, you are definitely in a negative situation, and then you true. cannot remain you because you are following the other person. So how will you express yourself? And when you Because are you not stop expressing thinking yourself, there's no the moment creativity. the moment you are into competition, actually you stop thinking. You stop Yes. thinking. Very. आप उसके ऊपर फोकस ज्यादा करने लगते हो कि वो क्या कर रहा है और अब मुझे क्या करना है. मतलब आप Yes. अपडेट होते हो, पर आपका अपडेट होना उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है. वो कैसे काम कर. मुझे लगता है कि मेरा अपडेट होना मुझ पे डिपेंड करना चाहिए ना. What Right. ratio want to I or you can say I believe in one more thing. वो जो घोड़े के साइड में ऐसे लगा देते हैं, तो I believe in that one. ऐसे लगा लो, अपने काम से मतलब रखो. आप क्या कर रहे हो मार्केट में, आप मेरा कॉपी करके लेके जाते हो, मोस्ट वेलकम. मैं मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को एक चीज बोलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ. जैसे कभी कोई मुझे बोलता है रेशु उसने तेरा कॉपी किया, या कोई फ्रेंड मुझे बोलती है फोन करके यार उसने मेरा कॉपी किया, मैं उसको बोलती हूँ अच्छा है कॉपी किया. वाई आई एम सेइंग दिस. दो चीजें होती हैं. जब आपको कोई कॉपी करता है मतलब आपका ट्रेंड सही है. सही यू आर है. ऑन अ ग्रोइंग फेज, मतलब आप अच्छा कर रहे हो तभी तो कोई दूसरा आपको कॉपी कर रहा है. यू आर अ ट्रेंड सेटर. और दूसरा उसने कॉपी करा तो अब वो तो तुम दोबारा करोगे नहीं. तो अब तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपग्रेड होना ही पड़ेगा. अगर कोई कॉपी कर रहा है तुमको तो सोचना पड़ेगा ना मेरे को नए बिजनेस के बारे में. मतलब अगर कल को कोई कुछ कॉपी करे बिजनेस तो मुझे नया निकालना पड़ेगा वर्टिकल. अरे यार ये तो कॉपी हो गया, ये तो हर कोई करने लग गया, अब तो मुझे कुछ नया करना है. So definitely the people who are following you, who are copying you, I think they are the best well-wishers of yours life. So respect them. And the most important, respect them. Please do respect them. They are the well-wishers because they are the people who help you to grow. Without them you can't grow. अगर आप मुझे सोचो मुझे सिर्फ appreciation मिलता रहे. Sorry. मुझे सिर्फ appreciation मिलता रहे, लेकिन वो एप्रिसिएशन मेरे किसी काम का नहीं है. ट्रस्ट मी, वो सिर्फ मेरा मोटिवेशन थोड़ी के लिए बढ़ाएगा जब तक कोई मुझे कॉपी नहीं करेगा. मुझे जब कोई कॉपी करके मेरे बिजनेस को देख के कोई दूसरा अपना बिजनेस चालू करने के बारे में सोचेगा तो मुझे समझ आएगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग जो लोगों को मोटिवेट करता है करने के लिए, कोई नया बिजनेस डालने के लिए. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मैं तब मानूंगी अपने आप को जब मेरे जैसे लोग वर्टिकल से स्टार्ट कर दें. अरे यार ये बिजनेस हम भी करेंगे, इसमें मतलब लोगों को ये समझ आने लगे इस बिजनेस में ना कमर्शियल्स बहुत अच्छा है. सो आप क्यों किसी को कॉपी करते हो? क्योंकि आपको लगता है ना उसमें कमर्शियल्स अच्छे हैं तभी आप उसे कॉपी करते हो. दैट पर्सन इज अर्निंग वेरी गुड. एंड नाउ सी मैंने बोला ना, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको मास्क का एग्जांपल इसीलिए दिया था. Everybody is making mask, everybody is reselling. Why everybody is doing this? Because everybody is thinking कि इस business में profit है, commercials बहुत अच्छे से, profit बहुत अच्छा है. So that is what I want कि अगर मेरे business को भी कल को कोई copy करता है तो मुझे ये समझ आएगा कि उसको ये समझ आता है कि इसमें profit बहुत अच्छा है. So मुझे वो definitely अभी मेरा वो प्रेशर बढ़ गया, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया. मुझे अपने स्टैंडर्ड को मैनेज भी करना है, उसने जो सोचा है उसको भी सही साबित करके दिखाना है, और सेम टाइम पे कोलैबोरेशन पे भी फोकस करना है. सो आई बिलीव नॉट इन कॉम्पिटिशन, आई बिलीव फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर कोलैबोरेशन कीजिए. आपके कॉपी करने वाले आपके हमेशा वेलविशर होते हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए. वो घोड़े की तरह ऐसे दो लगा लीजिए, वो बेस्ट होता है. अपने काम से मतलब रखिए, आपका काम परफेक्ट होना चाहिए. इसके साथ राइट कॉपी करेंगे पर आप जैसा माइंडसेट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जब तक वो आपको कॉपी करेंगे तब तक आप 4 कदम और आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आपका काम पहले से शुरू हो चुका होता है. तो ये चीज मैं कल भी बोल चुकी हूँ कि आप तो बहुत आगे निकल गए. जब तक वो आपके लेवल पर आएंगे आप और 10 स्टेप्स आगे जा चुके होंगे. आप रुक तो नहीं रहे हो ना. हाँ आप रुक गए वो बात अलग है. तो दिस इज व्हाट कीप मूविंग फॉरवर्ड. वन माई सी देयर आर 4-5 आई बिलीव के हर एंटरप्रेन्योर के ना लाइफ में कुछ मंत्र होने चाहिए. जैसे मेरे हैं कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है. बी ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, बी ग्लोबल, कीप मूविंग फॉरवर्ड. वो घोड़े की तरह दो ऐसे लगा लो, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. कोलैबोरेशन में बिलीव करो, और कॉपी करने वाला आपका सबसे बड़ा बेनिफिशियर होता है. So I believe in these 4-5. Write down, please, people and viewers, please be there and take down notes of these and just stick. I think they should stick them this on their cupboards. Such a lovely interview. Like आज तक मैंने बहुत सारे interviews लिए, but this will remain close to my heart. What I feel, very very fruitful insights here. And this is what just my experience. Yes, and I'm requesting viewers to please post the questions also, because we are coming to the last 2 questions,
एंड ऑल्दो व्यूअर्स के कमेंट्स बंद है, पर यहाँ घर से मेरे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मम्मा कौन है, एकदम हमारे टीचर का कंप्यूटर में जैसे आवाज आता है वैसी आवाज आ रही है. दिस मीन्स यू आर अ परफेक्ट एजुकेशनिस्ट. यानी एक 11 साल के बच्चे ने आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है आज के लिए. साउंडिंग लाइक अ टीचर. सेशंस कर करके मेरा वॉइस ऐसा हो चुका है. समटाइम्स माय मदर यूज्ड टू से बेटा गला खराब है क्या. आई सेड नहीं मम्मा, दिस इज माय रियल वॉइस एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन. So yes, बारिश तो हो रही है हर तरफ से compliments की, but then when I talk about my child, even I feel that you have a kid, and how do you really manage your like how home, profession, and reaching globally? You know, there are so many like now the sixth thing is also coming up. You said, so how do you manage? मैं इसके लिए तो एक चीज बोलूंगी. मैं ट्रस्ट मी, मैं कुछ मैनेज नहीं करती. आई थिंक वो गॉड ना, I believe that I'm a very special child of my God, because what I have my as a child, I don't know. जो भी मेरे बेटे से मिलते हैं उनका ऐसा कहना होता है कि ये ऐसा कैसे है, how can it be possible, इतना छोटा बच्चा और he is sitting so nice and I said मैंने कुछ नहीं करा है, trust me, I don't want to take credit of that कि नहीं जैसे होता है मेरी परवरिश है और नहीं, वो I don't know, वो शुरू से ही ऐसा है. When I was pregnant, I was the principal. Actually, I think वो गर्भ संस्कार ही वैसा हो गया है. So I'm blessed. What I say, I was the principal when I was pregnant, और मैंने पूरा 8 महीने काम किया था. जस्ट जून में डिलीवरी था और मैंने मई में ऑफिस छोड़ के डिलीवरी के लिए घर गई थी. तो जस्ट 1 मंथ मैंने घर पे बिताया है और 8 महीना स्कूल का प्रिंसिपलशिप किया है. तो शायद एक वो रीजन है. और सेम टाइम पे मैंने गर्भ संस्कार को थोड़ा सा फॉलो किया था, बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल टाउनशिप. तो वहां पर ऐसा पुणे की तरह वेल सेटल्ड चीजें अवेलेबल नहीं थी, एक्सरसाइजेस एंड ऑल. सो आई रेड सो मेनी बुक्स रिलेटेड टू साइंस और MBA पार्ट जस्ट ऑन माई कंप्यूटर. आई थिंक शायद जो वो मेरा पूरा 9 months का बिहेव था, द वे आई वॉज लिविंग माई लाइफ एज अ प्रिंसिपल ओनली इन माई बुक्स और इन कंप्यूटर्स, आई थिंक वो उसका पूरा मिनिएचर सामने आ गया, रियल लाइफ में बाहर आया है, वैसा कह सकते हैं. When in 2016 when I came in Pune, I attended one NLP session for a day. One day NLP session था. One of my friends suggested कि एक बार try करके देखो, it will help you and all. तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने बोला मेरा 4-4.25 साल का था शायद ये. मैंने बोला 4 साल का है बेटा मेरा, मैं उसको घर पे छोड़ के नहीं आ सकती, माई हस्बैंड इज इन बैंक सो नॉट पॉसिबल, और आपका वर्किंग डे में है, तो कैन आई कम विद माई चाइल्ड. शी सेड ओके, हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, लेट्स सी, अगर नहीं होगा तो आप चले जाइएगा हाफ डे में, मत अटेंड करिएगा. एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर 9 o'clock we started and 6:30 I think we finished, and my child was sitting with me on the table completely that hours and enjoying his drawing, enjoying the NLP sessions. उनका ना बेल था कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप बेल बजाइएगा. विद इन हर 15-20 मिनट के बाद माई चाइल्ड ऐसे एक बार बेल बजाता था और खुश हो जाता था. सो उस दिन मुझे सीखने को मिला उससे कि छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं, अगर इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर वेयर दे आर. और मैंने बोला ना कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कुछ भी उसे सिखाया है. आई नेवर टेल हिम कि यहाँ बैठो या ऐसे खाओ या ऐसे करो. दैट इज व्हाट इज अपब्रिंगिंग, अपने आप ही होता चला गया. तो जब आप ये क्वेश्चन मुझे, आप बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग, कि तुम बैलेंस कैसे करते हो, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे अभी जानते हैं थोड़ा बहुत भी, उन्हें ये पता है कि मेरा बेटा मेरे साथ हर इवेंट में होता है, हर प्रोग्राम में होता है. मैं उसे कभी घर से, मतलब घर पे किसी के पास नहीं छोड़ती. आई नेवर सेंट हिम एनी दैट इज प्ले क्लासेस और डे केयर और एनीवेयर. आई टुक हिम एवरी टाइम एवरीवेयर विद मी, चाहे फिर वो पूरे दिन का ही क्यों ना हो. मेरे खुद का जब सबमिट हुआ था अभी 2 मार्च को, सो हमने घर पे क्या डिसाइड करा, नाउ ही इज 8 years old, मतलब तब 8.5 साल का था. तो मैंने उसको बोला मार्च में मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, आप पूरा दिन मेरे साथ सबमिट में रहोगे. ही सेड यस मैं रहूंगा. तो फिर आप हमारे लिए काम करो. ही सेड क्या काम करना है. आई सेड स्टेज पे जो फिल्म्स आते हैं ना वो आप लेके आओ. सो ही एंड हिज फ्रेंड हेल्प्ड. मंजू का बेटा ये और मेरा बेटा, इन लोगों ने स्टेज पे सारे फ्रेम्स को लेकर आना, दिलवाना करना, एवरी डे छोटे छोटे काम थे कि इसको बुला के लाओ, एवरीथिंग. एंड दे डिड सो हैप्पीली, beautifully. Or not only in this event,
इससे पहले भी जब हमारे छोटे या बड़े इवेंट होते थे इसने किया है। इवन जब ये 4 साढ़े 4 साल का था, मैं आपको बताऊं, मैं इसको मेरे उसमें लेके जाती थी, जो मैंने आपको बताया ना, मैंने काउंटर्स लगाए थे जहाँ पे मैं देखना चाहती थी रिस्पॉन्स कैसा आता है। यस ये काउंटर्स पे मेरे साथ खड़ा होता था, जस्ट 4 साल का 4.5 साल का बच्चा था, और वो एक्सपेरिमेंट्स करवाता था और हेल्प करता था कि मम्मा ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करा दो, ये वाला मैंने सीख लिया है, मैं करा दूंगा। तो ये 4 साढ़े 4 साल की एज से ना, क्योंकि लगातार मेरे साथ लगा हुआ है, हर जगह मेरे साथ रहता है ना, सो व्हाट आई थिंक कि मुझे ऐसा महसूस अब होता है कि वो चल रहा है, उसका लर्निंग, उसका ट्रेनिंग, उसका लर्निंग, एवरीथिंग इज जस्ट विद मी। तो आई बिलीव कि अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप लोगों को ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि मेरे बच्चे को मैं कैसे लेकर आऊं, बिलीव मी, आप स्टार्ट कीजिए आपके बच्चे को लेकर आना। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप अभी अचानक से लेके जा रहे हो सकता है बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, बट ये उसका बेस्ट लर्निंग एज है, बिकॉज आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस। कि अपने बेटी को आप आपके साथ में रखिए, आपके इवेंट्स में ना, आप सिखाइए ना लोगों से बात करना। आप वैसे भी तो जब अपने फैमिली फंक्शंस में जाते हैं तो आप बताते हैं ना कि क्या करना है, आप यहाँ पे भी बताइए ना। आप हमको मीटिंग्स में लेके मैं, अगर आप लोगों को बताओ, SGST क्लब की जो मीटिंग्स होती हैं, BNI की तरह जो क्लब्स होते हैं, मैंने वहां पर ऐसा गेस्ट मीटिंग अटेंड की है, वो 6 आवर्स की मीटिंग होती थी, उसमें भी ये मेरे साथ मेरी बराबर वाली चेयर पे बैठा रहता था, और इसको बस ऐसे होता था कि कुछ दे दो करने के लिए। तो आई यूज्ड टू गिव हिम ड्राइंग, वो टाइम पर मैं कुछ इसकी बुक्स लेके साथ में चलती थी और ड्राइंग्स लेके साथ में चलती थी। छोटा सा हमेशा इसका मेरे साथ रहता था, उसमें इसके खाने का 2-3 सामान है, एक दो फ्रूट है, पानी का बॉटल है, एवरीथिंग, और वो साथ में रहता था। एंड ही वाज सिटिंग विद मी इन द SGS। इमेजिन जो बिजनेस मीटिंग्स होते हैं, इट्स अ ह्यूज बिजनेस मीटिंग्स फॉर 6 आवर्स, और नॉट इवन अ सिंगल नॉइस ही डिड। मुझे वहां पे ना सेशन के बाद में, बिलीव मी, लेडीज आकर ऐसे बोलते थे, और मुझे बहुत अच्छा फील होता था तभी, क्या किया है इसको ऐसा? आपका बेटा पूरे टाइम सेशन में बैठा था, शोर भी नहीं किया, उसको डांटना भी नहीं पड़ा, आप कैसे सिखाते हो ये सब? और मैं तब भी वही बोलती थी, आई थिंक आई एम अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, और वो ऊपर वाले को पता था कि as a life coach I can see, and as a person with like into spirituality, I can say that what magic you created is that kids always learn through their parents, you know, how stable and how quiet you are, how balanced you are, वो देख रहा था. And the second most important thing that you did is you allowed your child to blossom the way he wants. So आपने कहीं रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट किया. जब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो उसके नेचुरल ग्रोथ में, तब जाके वो चिड़चिड़े या रिएक्टिवनेस में जाते हैं. रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए ही वाज नॉट रिएक्टिव, लाइक ही वाज अ रिस्पॉन्डिंग फन फील्ड, मतलब उसका जो अंदर का क्योंकि इंसान का गुण होता है ना ब्लिसफुलनेस, आनंद, वो आपने कहीं रेजिस्ट नहीं किया, उसमें हर्डल्स नहीं डाले. तो यू अलाउड योर चाइल्ड टू ब्लॉसम द वे ही वांटेड. So I think truly everybody must learn this art from you also. And when parents are balanced ना, बच्चे हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप 6 घंटे मीटिंग में आप कैसे बैठ रहे हो, और उसने वो बचपन से देखा कि आप क्या कर रहे हो. अगर आप उस मीटिंग में पानी चाहिए, मुझे गर्मी हो रही है, कितनी देर मीटिंग चलेगी, मीटिंग जल्दी खत्म होगी या नहीं, ऐसे आप नहीं कहते थे, है ना. हाँ, ये मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, और मुझे तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता था, बिकॉज माई चाइल्ड नेवर आस्क्ड, नेवर, कि कितनी देर में घर जाएंगे, कितनी देर में मीटिंग खत्म होगा. या ये कह सकते हैं कि मेरी डिलीवरी के बाद मैंने जस्ट 1 ईयर का ब्रेक लिया था, उसमें भी मैं घर पे दे रही थी. ये जब सो जाता था तो मेरे ट्यूशन के बच्चे जो थे, मेरे स्कूल के कॉलेज के बच्चे पढ़ने आते थे, तो शायद वो इसको जो एटमॉस्फेयर है वो स्टार्टिंग से मिला. और जब ये आई थिंक 14 मंथ्स का था, एंड आई रीजॉइंड स्कूल एज अ प्रिंसिपल, जस्ट ये 14 मंथ्स का था, तो ये इसने चलना स्टार्ट किया था. तो ये क्या करता था ना, स्कूल में, मैं तो प्रिंसिपल ऑफिस में अपना काम में बिजी हूँ, एंड कैमरे में इसको देखती रहती थी. एक सर्वेंट इसके साथ में रखी हुई थी जो इसके पीछे पीछे चलती थी. मैंने ये नहीं बोला था कि नहीं इसको पकड़ के बिठाओ, ये जो कर रहा है करने देना, बट साथ में रहना, सो दैट इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो ये कभी ना 7th क्लास में जाके बैठ जाता था, कभी 2nd क्लास में बैठ जाता था, कभी 4th क्लास में बैठ जाता था, कहीं पे भी, और जाके क्या करता था ना, फर्स्ट रो में किसी भी बच्चे के साथ में जाके ऐसे बैठ जाता था, और वो बच्चों से कॉपी पेन ले लेता था, और टीचर जो लिख रही होती थी, कर रही होती थी, उसको अपने कॉपी पे बनाने लगता था. तो इसने आई थिंक भी नहीं हुआ था, इसने 1 2 3 लिखना, ABCD लिखना, वो सब इसने बहुत जल्दी सीख लिया था. वो रीजन क्या था, स्कूल का एटमॉस्फेयर. पूरा दिन
उसकी मदर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक स्कूल में बैठी हुई है, पूरा टाइम उसको वही दिखाई दे रहा है, मतलब उसके पास और कुछ था ही नहीं करने के लिए। बड़े बड़े बोर्ड्स हुआ करते थे, उस पे स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं या हाथ में चौक है और उससे ड्रॉ करता रहता था। तो वो मुझे लगता है कि शायद इसका एटमॉस्फेयर ऐसा था जिस वजह से ये इतना अंत हो गया, क्योंकि इसको वेट करने का ना हैबिट आ गया कि मम्मी तो शाम से पहले घर जाने वाली ही नहीं है, तो वो हैबिट में है। सो ही नेवर एवर आस्क कितने बजे घर जाना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फ्रेंड से मिलना है, नेवर। आज भी अभी मैंने बोला ना हम मार्केट गए थे, तो आज भी मार्केट के लिए थे, तो बस एक बार बोला कि हम कब तक घर वापस आएंगे, मेरे को फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है। माय हस्बैंड सेड कि तुम टाइम से आ जाओगे। ही वाज कंप्लीटली ओके आफ्टर दैट। सो नाइस। फिर इतनी कोई मतलब नहीं। सो आई थिंक I don't know what I have to say for that. This I is think what my habits is also can be added. Like पहले इंसान आदतें बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती है. So, as rightly said, the environment and of course social well-being, the environment that you are there is definitely a part of your own mental health and your growth aspects. So parents should take note of all of these also. So yes, we have very lovely comments like wow, nice, they're getting a lot of insights. And with this I would like to come up to the last question of today, and that is like what would you really tell our viewers, although you have given like आपने तो पूरा ऑन्टरप्रिनरशिप के मंत्रा दे दिए, इनको 8 मंत्रा दे दिए, पेरेंटिंग के लिए अभी 3-4 मंत्रास हो गए हैं, पर फिर भी और क्या है जो आप हमारे ऑडियंस के लिए एक important message for the life, for the entrepreneurship, for any aspect that you find necessary, क्या आप देना चाहोगे उन्हें? Just one line, जो 4 साल से तो मैं बिलीव कर ही रही हूँ और आगे भी करने ही वाली हूँ, that is believe in yourself. Believe in yourself. Don't listen to anybody कि आप लैंग्वेज की वजह से आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, या कोई आपको आकर बोलता है कि नहीं प्रैक्टिकल कंपटीशन में ग्रोथ नहीं है, या कोई आपको आकर बोलता है। मैं ये वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि दिस इज व्हाट आप एक्सपीरियंस ही दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, दिस इज व्हाट योर रियल नॉलेज इज। तो मेरे को एक फ्रेंड ने मुझे कैसे कमेंट किया था, आप ड्रेस सही नहीं पहनते हो, ड्रेस सही नहीं पहनते हो, क्यों नहीं पहनते हो, अच्छा क्या ड्रेस में प्रॉब्लम है, आप ना पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ऐसे कपड़े पहनने का, महात्मा गांधी ने क्या पहना था, मतलब क्या पहन, अच्छा क्या मतलब कपड़े ऐसे क्या क्या पहनने हैं, अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ या मैं स्कर्ट टॉप पहन रही हूँ, उसका पेरेंट्स से मेरे कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स मुझे सुनते हैं। Exactly. They are not, it's only 5 seconds. After that, it's what you talk, what you present. That's what. तो मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि आपको ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं, मुझे आए थे, तो डोंट लिसन टू एनीवन व्हेन दीस कमेंट्स आर कमिंग इन योर लाइफ, या कोई आपको आकर बोले कि जैसे होता है ना, आपका एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं अच्छा चल रहा होता है काम, तो कोई आपको आकर ये बोल सकता है कि नहीं तुम्हारे इस काम में अच्छा नहीं है, कुछ और प्लान करो, इसको बंद कर दो, शट डाउन इट, नेवर डू इट। अगर आपने कोई बिजनेस दिल से स्टार्ट करा है, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपने उसका जो क्वालिटी चेक आप बोल सकते हो, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 4-5 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए हैं कि आपका बिजनेस क्या है, क्यों है, कितनी मार्केट में उसकी जरूरत है, जिस एरिया में आप खड़ा कर रहे हो वहां पर उसकी जरूरत है भी या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आई थिंक क्लियर ऑल द डाउट फॉर एवरीवन, कि आप चेरापूंजी में अगर जाओगे तो वहां पर अगर आप अम्ब्रेला बेचोगे और रेनकोट बेचोगे तो वो बिकेगा, डेफिनेटली बिकेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में जाकर वही रेनकोट बेचने लगोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। दिल्ली में अगर आप दिसंबर के महीने में स्वेटर बेचोगे तो बिकेंगे, कोट बिकेंगे, बट अगर आप वहां जाकर टी शर्ट बेचोगे कट स्लीव्स की दिसंबर के महीने में तो कोई नहीं खरीदने वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है और उसकी डिमांड क्या है, और क्या वो आप डिमांड पूरी कर पा रहे हो। अगर आपके पास ये तीनों चीजों, चारों चीजों के आंसर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास आपके अलावा कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर, और मैं आपकी दुकान पर आऊं, फिर वो चाहे दुकान आपका कोई बिजनेस है, आपका स्कूल है, आपका प्ले सेंटर है, आपका एक्टिविटी सेंटर है, आपका बैंक है, कुछ भी है, आपने कुछ भी खोला है, मैं आपकी दुकान पर XYZ इंस्टीट्यूट पर चढ़ूं, ऐसा क्या है आप में? वाई ब्रेन वर्ल्ड इज ब्रेन वर्ल्ड। द क्वेश्चन इज, मेरे से कोई पूछता है कभी के पेरेंट के, वाई? बिकॉज आई हैव द प्रैक्टिकल कंपटीशन, नोबडी एल्स इज डूइंग दिस थिंग, nobody else is doing practical competitions in science experiments, and I have, उसमें भी मेरे verticals है, प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन्स में भी मेरे वर्टिकल्स रखे हुए हैं। सो अगर कोई और कर रहा होगा और कम दामों में कर रहा है तो आप चले जाओ, आई एम ओके विद दैट, बट
आई नो माई यूएसपी कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, नोबडी एल्स इज डूइंग। तो आपको राइट, आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो बेच रहे हो वो क्या है। करेक्ट, कोई तो खरीदे तो क्यों खरीदे, मैं आपके माल को खरीदूं तो क्यों खरीदूं, क्या है ऐसा। वो एक चीज अगर आपकी खुद से कॉन्फिडेंस है ना, बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट आई राइट, टोल्ड कि आपका लिसन ओनली योर सेल्फ, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने बारे में। बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज व्हाट माई लाइफ का, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कोई एक लाइन बोलो, तो मैं उसको डिस्क्राइब थोड़ा सा करना चाहती थी कि बिलीव इन योर सेल्फ इज नॉट ओनली अ वर्ड, दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। बिलीव इन योर सेल्फ इज नॉट ओनली मैंने बोल दिया और आपने सोचा अच्छा अब हम जो भी करेंगे ना वो बिलीव इन योर सेल्फ, नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, पहले आपके दिल को पता होना चाहिए। और ये शायद आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे, कई बार यस, एक मोमेंट ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कि हम ऊपर से तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं पर अंदर हमें भी कहीं डर लग रहा होता है। तो वो डर आपका जिस दिन निकल गया ना, द वर्ड आई एम सेइंग बिलीव इन योर सेल्फ, वहां ये फिट होता है। जिस दिन आप वो डर भी बाहर निकाल दोगे अपने अंदर से, दैट इज द थिंग, इज बिलीव इन योर सेल्फ। मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ होते हुए हैं। हैं, होते एंड हैं। ये डर, ये जो बचा हुआ छोटा सा डर है, ये जब निकल जाता है ना, ये सिर्फ 5% एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में निकलता है। जब ये निकलता है, देन पूरी दुनिया उनके खिलाफ भी हो जाती है। ये भी वक्त आता है कि दुनिया खिलाफ हो जाती है, एंड देन दे बिकम ट्रूली रेबेलियस। तो बिकम अ रेबेल वो उस वक्त अप्लाई होता है, ना कि पहले जब अब तो आपका मुझे वो। वो है ना, अब तो मुझे करके यस, दिखाना है। एंड दैट इज व्हाट मेरे साथ भी तब हुआ था जब वो लैंग्वेज इशू आया था। मेरे को यस, ये वाला रेबल पार्ट तभी आया था कि अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ओ माय गॉड, हाउ अ पर्सन से दैट लैंग्वेज इज अ because बैरियर। that is one of the steps when you are reaching a higher extraordinary platform ना, तो you have to become a rebellious। क्योंकि तब आप में ऐसी कुछ क्वालिटीज रहती है जो किसी को नहीं पटेगी, किसी को नहीं समझेंगी, और तभी आप उनको पार करके जब आगे जाओगे ना, देन योर पाथवेज आर क्लियर। Very true. And that is what important to grow. That is what important to successful person. And that is what मुझे लगता है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये यस, क्वालिटी, ये स्पार्क आप इसे बोल सकते हो, क्वालिटी बोल सकते हो, एक चिंगारी नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये यस, यस। चिंगारी होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपके Burning अंदर नहीं desire होगी तो एक to टाइम के achieve बाद वो शट that। डाउन हो जाएगा, वो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा फिर एक दिन के बाद आपको। Yes, सी, आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो तो मैं ये भी एक बात आपको शेयर करूंगी यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं जो जॉब छोड़ देते हैं हाँ, जोश में, हम कुछ करेंगे, फिर थोड़े दिन करते भी हैं, बट हाँ। वो चिंगारी की कमी होने की वजह से वो वापस से जॉब पे आ जाते हैं। एंड आई सॉ क्लैरिटी दैट। नहीं होती। हाँ, यस, यस। तो वो चीज होना बहुत जरूरी है कि सब कुछ खो देने की ताकत अगर आपके अंदर है, तभी आप हम्म, बिजनेसमैन बनने के लिए। मेरे फादर ने एक बात बहुत पहले बोली थी, हमारे यूपी की एक कहावत है, हम्म, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, ऐसे है, सब कुछ जला दिया झोपड़ा कर दिया खाक, ऐसे करके था। सब कुछ वाह, जला दिया झोपड़ा कर दिया खाक, अ, इंसान को बनने के लिए, आई मिस दैट थिंग, कुछ था वो पूरा एक था, मेरे फादर बोलते थे, इसका मीनिंग ये था कि वाह, अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो सब कुछ खो देने की ताकत अगर है, वो झोपड़ा जला दिया मतलब जिसके पास एक झोपड़ा ही है केवल, और रोशनी करने के लिए तुमको वो भी जलाना पड़ गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो बिजनेस वही इंसान ग्रो कर सकता है जो सब कुछ खो देने की ताकत और हिम्मत रखता। अगर आपके अंदर वो यस, जोश है, वो डर नहीं है कि अरे यार ये सब चला जाएगा, और एक मैंने बोला ना, सुननी नहीं है सब, क्योंकि ऐसे हम्म, टाइम पे सबसे ज्यादा बोलने वाले आ जाते हैं जब आप सब कुछ बहुत जला आते देते हो, हैं। सब यस, कुछ यस। खत्म कर देते हो, सब आ जाते हैं, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था, तुमने हमारी नहीं सुनी। वो टाइम ऐसा होता है कि वहां पर अगर ये कदम आप बढ़ा चुके हो तो फिर आप पीछे नहीं लोगे, राइट। आप आगे ही जाओगे। मेरे साथ 2018 में आई थिंक 2-3 महीना एक ऐसा टाइम रहा था, जनवरी टू मार्च के बीच में, कि आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, लॉस्ट ओह, 2 लाख रुपीज इन माई बिजनेस। मैंने लगाए और वो रिवर्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला ना, मैं जो भी बोल रही हूँ दैट इज माई एक्सपीरियंस। तो यस, मेरे साथ ये सब हुआ था कि वही ना कि झोपड़ा जला दिया, सारा पैसा मैंने लगा दिया था, जितना मैंने इकट्ठा करा हुआ था 2-2.5 लाख रुपए, सब मैंने बिजनेस में लगा दिए थे, जीरो हो गया था, एक बड़ा जीरो आ गया था, हाथ में कोई कैश नहीं था, इट्स कंप्लीट। और बोलने वाले भी बोल रहे थे एक दो लोग, अरे हाँ, गलत करा ये, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये गलत डिसीजन है, पैसा बर्बाद कर दिया ये वो। बट वो एक होता है ना कि बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ, और जैसे मैंने बोला ना, मेरे 3-4 है,
पापा ने एक बात याद दिलाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ और के लिए हो। मतलब मैं Yes. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे को पियर्सन ग्रुप से प्रिंसिपल का ऑफर आया था, और बिकॉज Okay. ऑफ द लैंग्वेज इशू और डिस्टेंस, कोथरूड में मैं रहती थी और जॉब अमनोरा से थी, तो मैंने वो मना Okay. करा था प्रिंसिपल को। और उस दिन मैं घर आकर बहुत रोई, आई क्राइड अ लॉट। आई कॉल्ड माय फादर, 2016 में। माय फादर जस्ट से वन लाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद तू प्रिंसिपल के लिए बनी ही नहीं है, शायद कुछ बड़ा तेरी लाइफ में आने वाला है, इसलिए Right. ये चीज तूने छोड़ी है। आज मैं ये बात कहती हूँ, यस दैट्स ट्रू। अगर मैंने वो जॉब कर ली होती तो शायद मैं प्रिंसिपल होती और आपके साथ मैं ये सब नहीं कर रही होती। Yes, yes, so true. सक्सेस होती, एक अच्छी सैलरी होती, 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए आ रहा होता मंथली, बट और वो जो कंटेंटमेंट, आज वो खुशी जो आज की है, वो बहुत बड़ी वो नहीं है, होती, कई ज्यादा बड़ी है। Yes. वो पापा, और ये बात मुझे पापा ने, वही मैंने बोला ना, आई बिलीव इन दिस लाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पापा टोल्ड दिस लाइन, वो टाइम पे पापा, मैं रोए जा रही थी, एंड आई कॉल्ड माय पापा, एंड पापा वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, शांत हो जा, बता क्या बात है। एंड द मोमेंट ही सेड, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद तू Yes. इसके लिए बनी ही नहीं है, शायद तुझे प्रिंसिपल की अब जॉब करनी ही नहीं है, वो तेरा एक फेज था 5 साल का, वो कर ली जॉब, अब कुछ और हाँ. करने के लिए। मैं उन दिनों ऐसे रोती थी कि मैं क्यों पूना आ गई, अच्छी खासी प्रिंसिपल थी, क्यों मुझे पूना आना पड़ा, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड आई हैड टू बी देयर, क्योंकि उनका जॉब Yes. पोस्टिंग था। तो मैं ऐसे Correct. रोती थी, हस्बैंड पे भी कई बार गुस्सा होती थी कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, एंड इट वाज हाँ. लाइक बहुत ज्यादा। That's तब normal. मुझे पापा Yeah. ने, किसी के साथ भी ऐसा होगा तो पापा तब मुझे ये बात बोलते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद वो जर्नी वहीं तक की थी, वो Hmm. प्रिंसिपलशिप से जितना सीखना था ना एक एजुकेशनिस्ट बनने के लिए, वो सीख हाँ. लिया। अब अपना बाहर आना है। और जब वो प्रिंसिपल वाला पियर्सन ग्रुप छोड़ा, तो ऐसा लग रहा था, ओ गॉड, पियर्सन ग्रुप छोड़ दिया। बट अभी लगता है कि नहीं, मैं फादर आज को मेरे ख्याल से सिचुएशन उल्टी है, पियर्स एंड ग्रुप्स को लग रहा होगा कि यार ब्रेन वर्ल्ड समिट में जाना है, क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते नेक्स्ट टाइम, हैं? दिस इज व्हाट माय चैलेंज फॉर माय सेल्फ। अभी उनको भी मुझे बुलाना है guys, और मैं ये चीज अनाउंस, मतलब मैं उनको बड़े अच्छे वाले मोमेंट के साथ स्टेज पे शेयर भी करने वाली हूँ ये चीज को, वाह. कि got opportunity from your group as a principal, but I'm so sorry I denied it. Today I'm doing this thing. I'm going to do that. So this is one thing. Is like, I think then that's how you'll truly influence kids of next generation. That's how it should be, and that's the most ideal and gifted way. I feel people like you who will take an education industry to the next level. So this is really a blessing. What I feel. see, मैंने बोला ना, मेरा 20 years, when I was 18 years old, I started my job. My father told me तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा. My father always pushed me in a negative way. So he told me जॉब नहीं मिलेगा, कुछ कर लो. I said okay, I will show you. मैंने कंप्लीट करा और जॉब ढूंढ लिया, काउंसलर का जॉब मिला. स्टार्टेड माय जॉब एज अ काउंसलर. वो जो कंप्यूटर सेंटर में बाहर बैठ के साइन वाइन करते हैं और एंट्रेंस लेते थे, मैंने वहां से 2001 में जॉब स्टार्ट किया. 2001, 2, 3 ऐसे जॉब किया. फिर वहीं पर मैंने कंप्यूटर सीखकर मैं एज अ कंप्यूटर फैकल्टी बन गई, वहां करा. फिर टीचर की जॉब मिल गई तो मैं टीचर में चली गई. फिर टीचर, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल तक पहुंची. फिर बीच में 5 साल का एक लूप, कुछ भी कह सकते हो, दिल्ली में मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी 5 साल. हस्बैंड का जॉब था तो मुझे भी शौक लग गया, मुझे भी नाइट शिफ्ट्स करने हैं. सो आई स्टार्टेड कॉर्पोरेट जॉब. तो वहां पे भी 2 प्रमोशंस लिए. वहां से फिर वापस से हस्बैंड का भोपाल के पास में पोस्टिंग हुआ. देन बैक टू माय वर्क, बीएड कंप्लीट करा और स्टार्टेड माय करियर एज अ प्रिंसिपल. तो 5 साल वहां प्रिंसिपल, एंड देन 2016 केम इन पुणे अगेन. मतलब एवरी टाइम इट वाज अ रीस्टार्ट फॉर मी. मतलब हर बार ऐसा होता था कि आप पूरी तैयार दुकान को ताला लगा के आते थे. मेरे साथ वैसा हो रहा था. दिल्ली का एक अच्छा सा जॉब छोड़ना पड़ा मुझे पोस्टिंग की वजह से. फिर मुझे भोपाल में आके नया पूरा एक सेटअप लेना पड़ा. फिर पूना आके तो इट वाज लाइक एकदम ही चेंज हो गया सब कुछ. Completely, the language. I am relating with your story, Reshu, and I'll share this with you. क्योंकि जो आपकी लाइफ जर्नी रह चुकी है कि मैं कर रही हूँ, पीक तक जा रही हूँ, उसे छोड़ना पड़ रहा है, फिर कर रही हूँ, पीक तक जा रही हूँ, उसे छोड़ना पड़ रहा है, और फिर मैं पुणे आई. तो सेम इज इन माय केस आल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी कि कैसे ये विटनेसिंग क्या हो रहा है. और डेफिनेटली ये टाइम नहीं है इंटरव्यू में उसे शेयर करने का, बट आफ्टर द इंटरव्यू आई डेफिनेटली विल लाइक टू शेयर एंड टॉक ऑन दिस. So it was really a pleasure having you. और बातों बातों में वक्त कैसे चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंसाइट्स थी, इसलिए
ये सेशन मैंने जाने दिया, ऑल्दो आई वॉज माइंडफुली अवेयर कि कितने मिनट्स हो रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, पर जब ऐसा होता है ना, जब मिल रहा है, ले लो यार, इतनी सारी इंसाइट्स आपको मिल रही है, और इतना अच्छा गया ये इंटरव्यू. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लोज टू माई हार्ट्स इंटरव्यू. So that definitely people who will come later and watch this, please take a pen and paper, sit down, take up your notes for all the aspects, like whether it is entrepreneurship के लिए कुछ points है, या खुद के self reflection के लिए, self development and growth के लिए है, या parenting के लिए है, या education field के लिए है. तो इतनी सारी insights से भरा magical ये session. I'm not wanting to end it, but I'll really need to end, because there is lots of other new activities that are going to come up on Skill Connect. So definitely Skill Connect is also growing, और आज हमारा केक्स एंड बेकर्स का वर्कशॉप शुरू हो चुका है, उसके भी लाइव थोड़ी देर में आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेंगे. And we are into women development, women entrepreneurship, women है supporting other women. और आज आप बहुत सारी women को केक बेकिंग वर्कशॉप में देख पाओगे. तो thank you Reshu ji for the lovely interview, the interactions, so many insights, and just you were pouring out your experiences and knowledge wholeheartedly. I could see that. And definitely एक line उनकी याद रखना, believe in yourself. Always believe in yourself, and she is the best example for that, what I can say. So thank you so much for your time, and thank you for being there on the Skill Connect group. Also, I would like to thank all our viewers for their wonderful compliments. If you still have any questions or you feel like asking more, do leave your questions in the comment section, and we will get back to you very soon. So thank you, and with this I declare the end of the session. Thank you Reshu ji, thank you so much. Thank you.